ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਟ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੈਸਟ 1 ਐਂਡ 2। ਅੱਜ 2 ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ 2 ਦੱਸੋ, 4 ਆਏ ਆ 4 ਦੱਸੋ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੀ। हाँ यस मैम, अमन कह रहे, मनप्रीत कह रहे ने यस मैम, एसपी सिंह कह रहे ने यस मैम। चलो ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ मेरे मैसेज नहीं आना। काहदा मैसेज नहीं आना बच्चे? मैम मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा कल दा, दोबारा इंस्टॉल कर लो। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿੱਬਤ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਇਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? क्वेश्चन नंबर 2 ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 2 ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 1799। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ? ਤੀਜੇ ਦਾ, क्वेश्चन नंबर 3 ਦਾ, डी ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਬੀ ਲੋਸਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहता फलस्तीनी शरणार्थी एक राज की पूरी नागरिकता ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। The Palestine refugee are fighting for full citizenship of a state in। हाँ, चौथे ਦਾ, क्वेश्चन नंबर 4 ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲਈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 5 ਨੰਬਰ। ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 5 ਨੰਬਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ, क्वेश्चन नंबर 5 ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। क्वेश्चन नंबर 5 ਦਾ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ। ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ। 6 ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? 6ਵੇਂ ਦਾ, क्वेश्चन नंबर 6 ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, TH ਹਕਸਲੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ 7ਵੇਂ ਦਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 8ਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? क्वेश्चन नंबर 9 कहना इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप फाउंड किन्ने हिस्सियां दे विच? क्वेश्चन नंबर 9 छੱਡ दो कुछ गड़बड़ हो गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन नंबर 10 ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਨ ਚੁਣੋ। दसवें दा गैर कानूनी इमीग्रेशन का गलत कारण चुनो। हाँ इत्थे पार्ट पूछे किहड़े हिस्से विच, इत्थे पार्ट होना चाहिए सी। बिल्कुल सही है। सैकेंड पार्ट दे विच है। हाँ विच पार्ट इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप फाउंड। बिल्कुल सही है। पार्ट सैकेंड दे विच नागरिकता के बारे वर्णन किया गया। बिल्कुल सही है। हाँ सही है सही है। 9वीं दी दूजी ऑप्शन 10वें दा गैर कानूनी इमीग्रेशन का गलत कारण चुनो। गैर कानूनी इमीग्रेशन का गलत कारण चुनो। क्वेश्चन नंबर 10 था चूज द इनकरेक्ट कॉज ऑफ इलीगल इमीग्रेशन। इलीगल इमीग्रेशन का कारण चुनो। 10वें दा शांति चौथी ऑप्शन। बाकी सारी ऑप्शन ही नेगेटिव है। तो ही पता लग रहा सी डी ऑप्शन। चलो फटाफट 10 के आंसर फटाफट दोबारा दे आजे याद हो जाएंगे। 1958 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ सी ऑप्शन बिल्कुल सही। फ्रांसीसी क्रांति कदों हुई सी? दूजे दा जल्दी दियो इन्ना टाइम नहीं लाना। दूसरे दा दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही। हेठ लिखी शर्त दी अधीन नागरिकता गवा दी जाती है। तीसरे दा डी ऑप्शन शरणार्थी एक राज्य की पूरी नागरिकता के लिए लड़ रहे ने। चौथे दा पहली ऑप्शन अपार्थाइड शब्द का मतलब की हुंदा है? अपार्थाइड शब्द का मतलब की हुंदा है? पंजवें दा दूजी ऑप्शन नागरिकता के अधिकारों की धारणा किहदे नाल जुड़ी हुई है? लवप्रीत ने जवाब दिता सी इहदा। छेवें दा तीजी ऑप्शन नागरिकता गवा दी जाती है। सतवें दा चौथी ऑप्शन अपार्थाइड का मतलब की है? 8वें दा दूजी ऑप्शन किहड़े पार्ट दे विच सिटीजनशिप बारे वर्णन किया? कॉन्स्टिट्यूशन के किहड़े पार्ट दे विच? हाँ दूजी ऑप्शन दूजे भाग दे विच नागरिकता बारे डिस्क्राइब किया है। गैर कानूनी इमीग्रेशन इलीगल इमीग्रेशन का जिहड़ा रोंग की है, रोंग कारण की है, इनकरेक्ट कॉज की है? 10वें दा चौथी ऑप्शन। ठीक है जी। 11 नंबर क्वेश्चन ते आओ। 1951 जनेवा कन्वेंशन नाल संबंधित है। कहना 1951 जनेवा कन्वेंशन डील्स विद काहदे नाल डील करदी है? 11 दा क्वेश्चन नंबर 11 दा क्वेश्चन नंबर 11 दा क्वेश्चन नंबर 11 चूज कहना 1951 जनेवा कन्वेंशन डील्स विद 1951 दी जनेवा जिहड़ी कन्वेंशन है किहदे नाल डील करदी है? शरणार्थी कानून नाल, मतलब रिफ्यूजी लॉ दे नाल डील करदी है। ठीक है। जिहड़ी 1951 दी जनेवा कन्वेंशन हुई सी किहदे नाल डील करदी है? रिफ्यूजी लॉ दे नाल डील करदी है। 12 दा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस दे विरुद्ध अंदोलन की अगवाई की सी? मार्टिन लूथर किंग ने कहना मार्टिन लूथर किंग ठीक है जूनियर लेड द मूवमेंट अगेंस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस दे विरुद्ध अंदोलन की अगवाई की सी? 12 दा 12 दी पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। वखरा कानून सानू ग्लोबल नागरिकता की लोड़ है। वी रिक्वायर ग्लोबल सिटीजनशिप फॉर
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? 13 ਦਾ 13 ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। 14 ਦਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ। 14 ਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 15 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 15 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ 15 ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ। 16 ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਈਅਰ ਵੈਨ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਗੋਟ ਇਕੁਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹਾਂ 16 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। 16 ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫੁੱਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਏ ਸਟੇਟ ਇਨ, ਕਾਦੇ ਲਈ? 17 ਦਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 18 ਦਾ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ। 18 ਦਾ 18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਸੈਡ he who has the power to take part in deliberative or judicial administration of any state is said by us to be a citizenship of that state। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 20ਵੇਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਸਰ ਦਿਆ ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। 1951 ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 11 ਦਾ ਫਸਟ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? 12 ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼। 12 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲੋ। 13 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। 14 ਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। 15 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, 15 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ 1990 ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 16 ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 17 ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 17 ਛੱਡ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ।
नागरिकता की गलत किस्म दसो। 18 का पहला सही है। 19 का किसने किया? ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਸਤੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ठीक है। उस तो बाद वाहिगुरु जी की मर्जी तुहाडी मेहनत। ठीक है। तो चलो आप अगला टेस्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने को कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट हुण आपां इह करदे हैं। कहंदा हेठ दित्ते कथनां विचों किहड़ा सही नहीं हैगा। देखो इहदे विचों किहड़ा सही नहीं हैगा। देखो पहले दा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दा किहड़ा सही नहीं हैगा। Which of the following statement is are not correct? इन्हां विचों किहड़ा सही नहीं हैगा। सब तो पहले मैं ही बोलदी हां। देखो पहला सही है। भारत विच सारियां चोणां लई पहला पोस्ट प्रणाली की पालना की जाती है। इंडियन पोलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा आना चाहिए। पहला सही है। पहला नहीं सही है। दूजा देखते हैं। भारत का चोन कमीशन पंचायत और नगर निगम चोन की निगरानी नहीं करता है। बिल्कुल है ना। भारत का चोन कमीशन पंचायत नगर निगम चोन की निगरानी नहीं हाँ चोन कमीशन क्यों पंचायत नगर इन्हों की तो अपनी होंगी है। ये तो सही है बिल्कुल। तीसरे का भारत के राष्ट्रपति चोन कमिश्नर नहीं हटा सकते। हटा सकता है है ना। तीजा तो गलत है। चोन कमीशन में एक तो वध चोन कमिश्नर की नियुक्ति लाजमी है। हो सकता है। केड़ी ऑप्शन बनती है फिर पहली ते तीजी दूजी ऑप्शन आ गई। हाँ दूसरी सही है। बिल्कुल सही है। SP सिंह जी भारत का नहीं कर सकता। ठीक है जी। पहले दी दूजी ऑप्शन हाँ सही है मनप्रीत जी। SP सिंह जी बिल्कुल सही। 2 नंबर राजनीतिक समानता का मतलब हर नागरिक नूं दिता जाना चाहिए है। की दिता जाना चाहिए है? दूजे दा दूसरे दा क्वेश्चन नंबर दूसरे दा क्या हो गया जल्दी करो। दूसरे दी सी ऑप्शन चलो भी बच्चे दूसरे दा की लगाया। दूसरे दी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। वोट पाना ते चोण लड़न दा अधिकार। तीसरे दा साडे संविधान दे विच सोध नूं लागू कीता जांदा है। तीसरे दी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। संविधान दे विच निर्धारित प्रोविजनस के अनुसार उपबंधां के अनुसार। चौथा एक कानूनी दस्तावेज के एक शुरुआती संस्करण नूं कहा जाता है। चौथे दा कहंदा प्रीलियम वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। चौथे दा कानूनी दस्तावेज के शुरुआती संस्करण नूं शुरुआती वर्जन नूं की कहा जाता है। चौथे दी सी ऑप्शन ड्राफ्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान विच लिखण वाली संविधान सभा के मैंबर। चौथे दा पंजवें दा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 299 98 सी। चलो 299 भारतीय संविधानिक छेवें दा भारतीय संविधानिक छेवें दा लिविंग डॉक्यूमेंट है लिमिटेड डॉक्यूमेंट है कि नॉन लिविंग डॉक्यूमेंट है। छेवें दा पहला लिविंग डॉक्यूमेंट है। संविधान की सोध प्रक्रिया विच दिती गई है।
संविधान की सोध प्रक्रिया बारे वर्णन किया गया। 7वें द अमेंडमेंट प्रोसैस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन 7वें दा बोलो बच्चे 7वें दी दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही है 368। चलो बोलो फटाफट फर्स्ट हेड़ लिखिया विचों किहड़े सही नहीं हैगा। इहदी दूजी ऑप्शन सी पहला ते तीजा सही नहीं हैगा। राजनीतिक समानता का मतलब की है। तीसरी ऑप्शन वोट पाना चोन लड़न का अधिकार। साडे संविधान विच सोध नूं लागू किया जा सकता है। तीसरे दा की सी प्रोविजनस के अनुसार कानूनी दस्तावेज नूं शुरुआत विच की किया गया सी ड्राफ्ट किया गया सी। चौथे दा सी ऑप्शन तुसीं फटाफट आंसर नहीं दिंदे फिर तां मैं खुद ही बोल रही हाँ। भारतीय संविधान विच संविधान सभा के मैंबर ठीक है जी। तीजी ऑप्शन बिल्कुल सही 299। भारतीय संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है। 7वें दा सोध प्रक्रिया आर्टिकल 368 ठीक है जी। दूजी ऑप्शन लपरी जी बिल्कुल सही है। चलो उस तो बाद 8 नंबर क्वेश्चन भारत का संविधान एक सिंगल एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका मतलब है भारत का संविधान एक सिंगल एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका मतलब की है 8वें दा भारत का संविधान एक सिंगल एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। मतलब की है देखो पहली ऑप्शन इसका मतलब हो सकता है दुनिया के होर संघी देशों के उल्ट भारत को नई वखरी राज अदालत गलत है। तो भारत दे विच न्यायपालिका का ढांचा सुप्रीम कोर्ट के नाल पिरामिड है। उस तो उपर उन्होंने हेठां उच्च अदालतां हेठां जिला अदालतां ते अधीन अदालतां हुंदियां ही है। बिल्कुल सही है। दूजी तो सही है ना। तीसरी भी वेख लेने हेठली अदालतां विच उच्च अदालत की सीधी निगरानी हेठ काम करदियां बिल्कुल करदियां। दूजा ते तीजा मतलब सी ऑप्शन 8वें दा सही है। 9वें दा संविधान की सोध शुरू की जाती है। 9वें दा क्वेश्चन नंबर 9 संविधान की सोध अमेंडमेंट प्रक्रिया कित्थों शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 दा इंडियन पोलिटिकल सिस्टम के क्वेश्चन थोड़ा तुहाडे गलत होने चाहिए जे ना आंदे सोचण की तो लोड़ ही नहीं हुंदी। आपदी तजर्बे के आधार पर जवाब दिओ बस। संसद का कोई भी सदन दे विच बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान बारे हेठ लिखे कथनां ते गौर करो ते सही चुनो। 10वें दा क्वेश्चन नंबर 10 दा भारतीय संविधान बारे हेठ लिखे कथनां ते गौर करो ते सही चुनो। 10वें दा पहला सही है संविधान निर्मातावां दा विश्वास है कि संविधान विच कोई नुक्स हो सकदा है गलत है। तां पहली ऑप्शन रिजेक्ट हो रही है। भारतीय संविधान विच कुछ व्यवस्थावां अस्थाई रूप दे विच हैगियां हाँ ताइयों तो बदलाव लिया सकते हैं आपां। भारतीय संविधान नूं सोधण दे तरीके वख-वख है बिल्कुल हैगे आ। दूजी ते तीजी ऑप्शन किहड़ी बन रही है सी ऑप्शन 10वें दी तीजी ऑप्शन ठीक है जी। 11 दा भारतीय संविधान ने नागरिक सुतंत्रतावां की गारंटी दी है जो दुर्वरतों नूं घटाउंदी है। 11 दा भारतीय संविधान के नागरिक सुतंत्रतावां की गारंटी दिंदे ने जिहड़ियां दुर्वरतों नूं घटाउंदे ने। 11 दा तीजी ऑप्शन राज ते इसदे एजेंट बिल्कुल सही है। उस तो बाद नैक्सट 12 दा भारत की सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हेठ दिते बयानों ते गौर करो। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हेठ दिते बयानों ते गौर करो। पेपरां दे क्वेश्चन ने बस तुसीं ये समझो सी पेपर च बैठे हैं लाइटली ना लो इनू। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में किहड़ा विचार तुहानूं इन्हां विच सही लगदा है। पहला सही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले बाकी सारी अदालतों लिए पाबंद हैं हैगे ही है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होंदा है तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं गलत है। कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है हाँ बिल्कुल कर सकता है। नहीं नहीं अगे क्या उन्हें केवल ता ही हाई कोर्ट में प्रमाणित करता है केस अपील योग है। नहीं नहीं इदा की कोई कमिटमेंट नहीं होंगी। 12 की पहली ऑप्शन सिर्फ सही है 12 की फर्स्ट क्योंकि 3 नंबर च कहंदा कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अपील कर सकता है केवल ता ही कर सकता है जे हाई कोर्ट यह प्रमाणित करता है कि केस अपील के लिए योग है भी तुसी उत्ते तुसी भी मेरे तो यह फैसला होंदा नहीं उहदे कोल जा वड़ो इदा नहीं होंदा वो तो आपां सैटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के फैसले तो
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੋੜਾ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 12 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 13 ਦਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੀਐम्बल। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, संविधान की आत्मा है, संविधान के मौलिक उद्देश्यों को प्रगट करती है। क्या बात है सुधा शर्मा जी, अभी अभी दिखे हो, वेलकम। 14 भारतीय संविधान के विकास लई किहड़े कारक जिम्मेवार हैं? 14 का भारतीय संविधान के विकास लई किहड़े कारक जिम्मेवार हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का, ठीक है जी, सौदा मतलब अमेंडमेंट्स ने, ठीक है, कानून है, कानून मतलब लीगल, है ना, यही कह रहा है। लॉज हो गए, जुडिशियल डिसीजन हो गए। 14 की डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। पार्लीमेंट विच सिफर काल के नियमां बारे गौर करो, कहना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 0 आवर इन द पार्लीमेंट। 0 घंटिया बारे वर्णन करो, पार्लीमेंट दे विच सिफर काल बारे वर्णन करो। 15 का 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का 15 दी कुछ गड़बड़ होगी, एक मिनट, ऑप्शन अगे आन गया नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 का आप पढ़ के कर लेने हैं, ऑप्शन ही नहीं दित्ती हुई, वेखते हैं किहड़ी ऑप्शन बनती है। पहला कहंदा है संसद के दोवां सदनां की हरेक बैठक का पहला घंटा हुंदा है। 15 का नहीं, इस समय दौरान स्पीकरां नूं बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। मैनूं तो यह भी नहीं सही लगती पई। कहंदा है संसद के मैंबरां नूं महत्वपूर्ण संबोधन करने के लिए विधान की आजादी दिंदा है। हाँ, ये तो सही लग रहा है, संसद के मैंबरां नूं विधान की आजादी दिंदा है, जनतक महत्ता का मुद्दा है, ये सही है। गैर रस्मी प्रक्रिया है ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 15 ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? पंद्रह की केड़ी ऑप्शन आ रही है? तीजी ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रही है। हाँ, तीजी ऑप्शन सही लग रही है, मैंने तो चौथी भी सही लग रही है, बोथ सी एंड डी। ठीक है, संसद के मैंबरां नूं महत्वपूर्ण संबोधन करने के लिए विधानिक आजादी दिंदा है, गैर रस्मी प्रक्रिया भी है। तीजा ते चौथा दोनों ऑप्शन 15 दी सी एंड डी। हाँ, एस पी सिंह जी बिल्कुल सही है।